Dear students, today we will start our lesson 3rd, Turning Point. Do you know, sometimes an event may bring about an important change in the life of a person, a group, or a country. So, such an event acts as a turning point. Do you know who has written this story, Turning Point? This story is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Do you remember who is he? So, I will tell you some points about him. Dr. APJ Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India, served as the 11th President of Indian Republic. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Dr. Kalam is also the author of several books and has written many poems for children. He was an aerospace scientist and also a writer. He worked as an aerospace engineer at ISRO. Do you know the full form of ISRO? Indian Space Research Organization, and DRDO. DRDO full form is Defense Research and Development Organization. Before becoming President of India, and he was died on 27th July 2015 due to heart attack. So, move toward our story, The Turning Point. I will translate it for you, so pay attention. I remember my teacher, Sri Siva Subramania Iyer, was taught me in class 5. मुझे याद है कि मेरे जो अध्यापक हैं श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे 5वीं कक्षा में पढ़ाया था. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. यह वही थे जिन्होंने मेरे हृदय में भविष्य के लिए, सपना दिखाने के लिए बीज बोया था. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. वह बहुत अच्छे अध्यापक थे और हम सबको उनकी कक्षा में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था. उनकी कक्षा अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था हमें. One day he was teaching us about a bird's flight. एक दिन उन्होंने हमें पक्षी कैसे उड़ते हैं इस बारे में सिखाया. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. He also explained how it changes direction while flying. उन्होंने एक डायग्राम, एक चित्र बनाया पक्षी का और हमें बताया कि ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, कैसे अपनी दिशा बदलते हैं जब वो उड़ते हैं. For 25 minutes he lectured us on things such as lift, drag and how birds fly in formation of 10, 20, 30. उन्होंने 20-25 मिनट के लेक्चर में हमें बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, नीचे कैसे जाते हैं और 10, 20, 30 के झुंड में कैसे उड़ते हैं. At the end of the class, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. और जब कक्षा खत्म हुई तो वह यह जानना चाहते थे कि हम लोगों में से कितने को ये समझ आए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं. I said I had not understood. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं. When I said this, he asked whether the others had understood or not. जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने और बच्चों से भी पूछा कि क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया. Many students said that they too had not understood. बहुत से बच्चों ने कहा कि हमें भी यह समझ में नहीं आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं. Our teacher was really concerned about this, but he did not get upset by our response.
हमारे टीचर, हमारे अध्यापक हमारी इस चीज़ से संबंध रखते थे, पर जो हम लोगों ने यह उत्तर दिया कि हम लोग को समझ नहीं आया, वे इस बात को सुनकर भी उदास नहीं हुए। He wanted us to understand the principle of flight. वो हमें उड़ने के प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांत के बारे में बताना चाहते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। So he said that he would take all of us to the seashore. तो उन्होंने हमें कहा कि मैं तुम सबको समुद्र के किनारे ले जाना चाहता हूँ। That evening the whole class was on the beach. उस शाम को पूरी कक्षा समुद्र के किनारे थी। He drew our attention to the seagulls flying in formation. There were about 20 of them. फिर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया उस ओर कि सीगल्स कैसे उड़ रहे हैं, वो भी एक ही आकार में उड़ रहे हैं, जो कि लगभग 20 थे। It was a marvelous formation of birds with a purpose, and we were all amazed as we began to recall what we had heard that morning. यह हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि इतने सारे पक्षी या आकाश में एक साथ उड़ रहे हैं। The teacher then asked us to look at the birds' wings, how they flapped to generate lift. फिर हमारे अध्यापक ने हमें यह ध्यान दिलाया कि देखो ये पक्षी कैसे उड़ रहे हैं और अपने पंखों को कैसे फड़फड़ा रहे हैं। He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. उन्होंने हमें कहा कि इन पक्षियों को देखो, इनकी पूंछ किधर को हिल रही है और इनके पंख कहाँ को फड़फड़ा रहे हैं और अपनी पूंछ को कैसे मोड़ रहे हैं। We looked closely and found that the birds in the position could fly in the direction they wanted to. और हमने उनको ध्यान से देखा तो हमने पाया कि वो पक्षी जिस दिशा में उड़ना चाहते हैं उस दिशा में वह उड़ रहे हैं, उस दिशा में अपने आप को बदलकर उड़ रहे हैं। Then he asked us a question, can you tell me what the bird's engine is and how it is powered? फिर उन्होंने हमारे से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बोट्स इंजन कहाँ है और ये कैसे चलता है। We know the answer to that question. हम जानते थे इस प्रश्न का उत्तर। All the aspects of the principle of flight became clear to us within the next 15 minutes. इस तरह से उड़ने का सिद्धांत हमें अगले 15 मिनट में समझ आ गया। We understood clearly the dynamics of a bird flight with the practical example of it in front of our eyes. तो इस तरह से हम लोगों ने गति विज्ञान सीखा अपनी आंखों के सामने कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। Our teacher was the greatest. हमारे अध्यापक महान थे। He had given us a lesson in theory as well as in practical. उन्होंने हमें यह पाठ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में करके बताया। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग। और यही असली टीचिंग थी, यही असली सिखाना और सीखना था। आई थॉट टू माई सेल्फ, ऐसे मैंने अपने आप में सोचा। फॉर मी दिस इंसिडेंट was not merely on understanding of how a bird flies. मेरे लिए यह इंसिडेंट प्रसन्नतादायक नहीं था, यह आसान नहीं था समझना कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। That evening on the seashore of Rameshwaram, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight.
उस शाम को समुद्र के किनारे रामेश्वरम जो जगह का नाम है तमिलनाडु में है, मैंने यह निश्चय किया कि मैं इन सब के बारे में पढ़ूंगा कि ये उड़ते कैसे हैं। At that time, I did not realize that eventually I would move towards the study of the science of flying. उस शाम को मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया, पर मैं उड़ने के सिद्धांत के बारे में जानना चाहता था, पढ़ना चाहता था। It was my teacher's lesson and the flight I had witnessed which inspired me to move towards the goal. यह मेरे अध्यापक ने मुझे शिक्षा दी थी, उससे सीखकर मैं इस सिद्धांत पर खोज करना चाहता था और मैंने यह निश्चय किया कि मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, कि मैं जीवन में क्या करूँगा आगे बनकर। Then one evening after class, I asked Mr. Iyer for advice. और एक शाम को मेरी कक्षा के बाद मैंने मिस्टर अय्यर जो मेरे टीचर थे उनसे एक सलाह मांगी। I told him of my interest in future studying the science of flight. और मैंने उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया कि मैं क्या चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं फ़्लाइट के उड़ने के सिद्धांत पर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बारे में खोजबीन करना चाहता हूँ। He patiently explained that I should complete class 8, go in high class and from there to college and take up the study of the sciences. और उन्होंने मुझे बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये समझाया कि सबसे पहले मुझे अपनी 8वीं कक्षा पास करनी चाहिए जो स्कूल में है, उसके बाद कॉलेज में पढ़ना चाहिए और उसके बाद मुझे साइंस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए। This advice and the lesson of the flight of words really gave me my mission for life. इस सलाह ने मुझे यह सिखाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने मेरी जो इच्छा है उसको एक मिशन में तब्दील कर लिया, मेरे उद्देश्य में बदल दिया, मेरे जीवन के उद्देश्य में बदल दिया। So when I went to college, I took up physics and then went on the study engineering at Madras Institute of Technology. तो इसके बाद जब वो कॉलेज गए तो उन्होंने अपना विषय फिजिक्स चुना और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। देयर आई टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर उन्होंने एरोनॉटिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, अब इससे उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बदल गई थी, उनकी जीवन बदल गया था। आई बिकेम अ रॉकेट इंजीनियर, एन एरोस्पेस इंजीनियर एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट। अब वह रॉकेट इंजीनियर बनना चाहते थे, एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते थे और टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। The memory of my teacher encouraging me to ask questions and then showing real life example to aid my comprehension remained with me all my life. इस तरह से मेरे अध्यापक की यादों ने मुझे एनकरेज किया, मुझे उत्साह दिया ताकि मैं प्रश्न पूछूं और अपनी जिज्ञासा को उत्साहित करूं और अपने भविष्य में मैं क्या बनना चाहता हूँ उसके लिए जानने के लिए प्रेरित किया। आफ्टर ऑल आई हैड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। इसके बाद मैंने अपने जीवन में जो टर्निंग पॉइंट है उसको प्रूव किया, उसको साबित किया। इट इनिशिएटेड एंड इवेंचुअली शेप्ड माई प्रोफेशन। उसने मेरे प्रोफेशन को एक आकार दिया और आरंभ किया। श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज द कैटलिस्ट
who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding. इस तरह से हमारे अध्यापक जो श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने हमारे अंदर परिवर्तन लाने वाला और जो हमारे यंग माइंड्स हैं, हमारे बच्चों के दिमाग हैं, जो कि हम लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, किसी विषय पर प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, हमारी उत्सुकता को बाहर निकाला और हमारी जो भी हमारी उत्सुकता को पूरा किया और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया. थैंक यू.